will discuss the motion of a charged particle in magnetic field. So this is our article, and we will start with this a very good conversation, and you will understand few beautiful things. So हम सबसे पहले अपना जो प्रायर एग्जिस्टिंग नॉलेज है आपके पास उसके साथ चलते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम ये देखते हैं कि जैसे अभी तक हमने पढ़ रखा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास आपने जो +1 में पढ़ा है वो कुछ इस तरीके से पढ़ा है कि यदि आपके पास एक बॉडी है और जिसका कोई मास है, राइट, और उसको आपने इनिशियली इस पॉइंट पर लोकेट करके रखा है, ओके। ये कोई ब्लॉक है जिसका कोई मास m है, इनिशियली इट इज एट पॉइंट A, and you apply some force, and this body will reach to point B, okay. So this is the direction of motion. This is the direction of motion of the body, right. So now this, if you are applying the force on the body, because body can move only with the application of the force, making certain angle theta with the direction of motion, like I will mark this as theta, okay. So for work to be done, this component will resolve this f into two components. It's f cos theta is the component of the force f along the direction of motion, and this is what the f sine theta, okay. So f sine theta component is the component of force in the direction perpendicular to the direction of motion. So you see here, and you have studied it, कि जो वर्क होगा as the body is going from point A to B, so work is the force into displacement, force in the direction of motion, so that is f cos theta, okay, into the displacement. ये displacement हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, s is the displacement, that is what you have studied in +1 class. So ये ऐसे आ जाएगा. So that is the reason भाई इसको हम लिख देंगे fs cos theta, and this is written as f vector dot s vector is equation number 1. This is what we have studied so far. ये हमने पढ़ रखा है. So this work will be maximum if theta is equal to 0 degree, and for work to be negative, theta is equal to 180 degree. For work to be 0, work is 0 if theta is equal to 90 degree. ये हम अभी तक जानते हैं, okay. Now when a charged particles, so now we are going to deal with another case, okay. So I mean I will do something like this. एक लाइन खींच लेते हैं हम, right. So first we consider first case, when motion of a charged particle. अब हम यहाँ पढ़ना है हमने, in this case motion of a charged particle okay, in magnetic field. Motion of a charged particle in magnetic field. This is our problem to discuss. So first case number one, पहला केस. अब यहाँ से चलिए, आप ये जो हमने पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं. When a charged particle is parallel or anti-parallel to the magnetic field. First case, when a charged particle is parallel or anti-parallel to the magnetic field. इसको केस को समझना है आपने सबसे पहले, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं फील्ड लगा के आपको बताता हूँ. ऐसे केस होगा ये. जब आप फील्ड लगाते हैं ना, तो इसको आपने नॉर्थ पोल ले लिया एक, और इसको आपने साउथ पोल ले लिया, ओके. तो चार्ज पार्टिकल की सिचुएशन कैसी होगी? इसमें जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो परपेंडिकुलर टू द कंपोनेंट जाएंगी, ऐसे करके,
फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये यूनिफॉर्म फील्ड हो जाएगा। ओके, सो ऐसे कर, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ magnetic lines of forces and direction of magnetic field. So this is north pole and this is south pole. So वर्क कब कितना होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, हमने जो फार्मूला किया है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज जो आपने भेजना है, ये उसकी वेलोसिटी, और ये आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसको यदि मैं खोलूँ तो आ जाएगा क्यू बी बी और साइन थीटा और एन कैप। तो एन कैप क्या बताएगा कि जो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगा। थीटा पैरेलल के लिए क्या होगा, फॉर पैरेलल, फॉर बी इज पैरेलल टू बी, बी इज पैरेलल टू बी, बी का मतलब क्या होगा, ये देखिए जरा, इसमें जो चार्ज पार्टिकल है वो इस तरीके से जा रहा है, ये कोई चार्ज पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ये उसकी वेलोसिटी है कोई मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, सो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। ऐसे केस में यदि आप अपने चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंकते हैं तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, ये पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन क्या है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो इन द सेकेंड केस, दूसरे में आप देखेंगे कि जब उसको आप एंटी पैरेलल फेंकेंगे तो वो कैसा केस होगा, ये आपका चार्ज पार्टिकल हो गया और इस तरीके से जाएगा आपका, और फील्ड का डायरेक्शन इधर को है और चार्ज पार्टिकल इधर को है। इस केस में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। सो इसमें आप भर के देखिए, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क करता हूँ, और इक्वेशन नंबर 2, from equation number 2 we have force due to magnetic field क्या हो जाएगा, क्यू बी बी साइन 0 डिग्री, दिस लीड्स टू 0। और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, क्यू बी बी साइन 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब कि पार्टिकल को आप चाहे इस डायरेक्शन में फेंको चाहे फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंको, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा दोनों केसेस में, इज इक्वल टू 0 होगा। ये हमारी पहली जो डिस्कशन है कि मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड पूरी हो गई। दूसरा केस अब आपके पास कुछ इस तरीके का है कि दूसरा केस आपका कुछ इस तरीके का होगा कि यदि आप अपने चार्ज पार्टिकल को, इफ यू थ्रो योर चार्ज पार्टिकल एट एन एंगल 90 डिग्री, मैंने चार्ज पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, केस नंबर 2, यहाँ हम लिखते हैं केस नंबर 2, when V is perpendicular to magnetic field, this is the shortcut form, and you can see here, this is the magnetic field, this is the magnetic field, so you can just see in the figure, यहाँ मैं लिख देता हूँ from figure number 1, इसको मैं फिगर नंबर 1 मार्क कर देता हूँ, इस फिगर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आप क्रॉस देख रहे हैं, यू आर जस्ट सीइंग हियर दिस क्रॉस आर ओवर हियर, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेपर है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है। ओके, सो दिस क्रॉस शोज दैट कि जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, और जो वेलोसिटी है आप किसी भी पॉइंट पर देख लीजिए वो कुछ इस तरीके से है, राइट। अब इन दोनों के बीच में जो ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री है, राइट। इन दिस केस आप डायग्राम में देख लें, फोर्स जो है हर पॉइंट के ऊपर इनवर्ड डायरेक्शन में है,
तो हमारे पास एक लॉ होता है इसको चेक करने का, उसको हम बोलते हैं मैं ऐसे लिखता हूँ, ओके, इस तरीके से। सो इसको हम बोलेंगे फोर्स, इसको हम बोलेंगे फील्ड, और इसको हम बोलेंगे करंट एंड मोशन। फोर्स, फील्ड एंड करंट, ओके। सो आप देखिए, आपके इसको यदि आप यहाँ लगाएंगे, इफ यू विल यूज इट ओवर हियर, देन यू विल फाइंड दैट कि जो फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ ये डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है, तो इसमें जो वेलोसिटी है, जो मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल है, इधर इस डायरेक्शन में है। तो आप ये देख रहे हैं कि हर पॉइंट के ऊपर जो फोर्स है वो उसको इनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है, ताकि वो एक सर्कुलर ट्रैक में ही रहे। तीनों पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है वो इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और वो सर्कुलर ट्रैक को फॉलो करेगा, ओके। सो इसमें आप यहाँ देख रहे हो कि मैं इसी जो एक्सप्रेशन है उसका इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास एक्सप्रेशन है फ्रॉम इक्वेशन 2, मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव। इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या चलते हैं, हम यहाँ सबसे पहले यूज़ करेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आप सामने देख सकते हैं। आप ये देखिए कि वेलोसिटी में और मैग्नेटिक फील्ड में कितना डिग्री का एंगल है, इट इज़ 90 डिग्री। सो आप यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में 90 डिग्री पुट कर दीजिए। तो जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा यहाँ से, ये देखिए आप, ये फोर्स जो है वो बिल्कुल अंदर की ओर है। तो ये कितना रह जाएगा, क्यू बी बी साइन 90 डिग्री और ये एन कैप। सो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो दिस विल बी जस्ट इन मैग्नीट्यूड में यदि मैं बात करूँ तो ये रह जाएगा वी क्यू वी ओनली, एंड आई विल मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। अब आपने प्लस वन में पढ़ा हुआ है कि एक फोर्स जो रेगुलरली एक पार्टिकल को एक सर्कुलर ऑर्बिट जिसका रेडियस स्मॉल आर है, इसके बीच में यदि घुमा रहा है तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। से इट इज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स as the particle, okay, of mass m is moving in a circle of radius r, okay, then F be the centripetal force will act on it, okay। so, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या होगा, दिस इज m, दिस इज द वेलोसिटी एंड ओवर रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके। सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 लिख देता हूँ, राइट। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 नए पेज पर चलते हैं। So from equation 3 and equation 4 we have, अब देखेंगे एम बी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू वी क्यू वी, ओके। सो वी के साथ वी कैंसिल हो जाएगा, एक आपके पास आ जाएगा रेडियस इज इक्वल टू एम बी अपॉन बी क्यू। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 5, राइट। सो यदि आपने अब इससे अब रेडियस निकालनी है, तो यदि अब ये चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड आप उसको फेंकेंगे तो इस रेडियस के साथ घूमेगा सर्कुलर ट्रैक में,
वो इस रेडियस के साथ घूमेगा। यदि उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा तो टोटल मोशन उसका ज़्यादा होगा, उसका मास ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तो उसका जो रेडियस होगा वो ज़्यादा होगा। यदि उसका मोमेंटम कम होगा तो रेडियस कम होगा। यदि उसका चार्ज ज़्यादा होगा रेडियस कम होगा। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो रेडियस कम होगा। ओके, सो इस इंफॉर्मेशन से और कौन से पैरामीटर जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। अब हमें ये देख रहे हैं कि जब आप चार्ज पार्टिकल को एक सर्कुलर ट्रैक में परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आप थ्रो करते हैं, जैसे आपने फील्ड अंदर की ओर लगाया हुआ और आप चार्ज पार्टिकल को ऐसे थ्रो करते हैं तो वो सर्कुलर ट्रैक में घूमना शुरू कर देता है, तो उसका जो रेडियस होगा वो इस तरीके से होगा। नाउ अब हम पढ़ते हैं आगे, टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट द सर्कल। टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट द सर्कल। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? जो टोटल डिस्टेंस कवर करता है और वेलोसिटी, इट इज 2 पाई आर, इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा और डिवाइड बाई वेलोसिटी। सो आप इसको 2 पाई अपॉन वी यहाँ रख लीजिए और रेडियस का वैल्यू पुट कर दीजिए। इट इज़ mb/b³ सो ये देखिए आप, ये आ जाएगा 2 πm/b³। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। और इससे आपने यदि फ्रीक्वेंसी निकालना हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, कितनी तेजी से वो सर्कल को पूरा करेगा, सो दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल। वो क्या होगा, न्यू इज इक्वल टू 1/2, so that is bq/2 πm। Question number 7 is one more information. Okay, and then we will go for the angular frequency. Another parameter is angular frequency of charge particle. Angular frequency, it is omega. Omega is equal to 2 pi time frequency. Okay, so it is आ जाएगा 2 pi time frequency का वैल्यू भर दीजिए, that is vq/2 πm। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू bq/m, राइट। मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू bq/m। So these were very interesting equations. Those will be very useful for us to solve the various problems of the motion of charged particle in the magnetic field. So now we will move ahead. अब हमने क्या क्या किया? अभी सबसे पहले हमने किया कि यदि if थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री के ऊपर आप यदि चार्ज पार्टिकल को एक फील्ड में थ्रो करते हो तो वो कैसा बिहेव करेगा, दिस वाज अवर प्रॉब्लम। अब हम आगे अपनी डिस्कशन को शिफ्ट करते हैं कि यदि हम ऐसा करते हैं, अपने चार्ज पार्टिकल को इसके सिवा किसी एक रैंडम एंगल के ऊपर हम फेंकते हैं। ओके, विल थ्रो द चार्ज पार्टिकल ऑन एनी रैंडम एंगल। ओके, सो तब क्या होगा? अब हम करते हैं केस नंबर 3। सो इट्स नॉट टेकिंग द कमांड, सो मुझे लाइन जो है वो हाथ से ही खींचना पड़ेगा। ओके, सो हम हेडिंग डालते हैं सबसे पहले, तीसरा केस में इसको लिखता हूँ केस नंबर 3। सो यू विल फाइंड इट सो इंटरेस्टिंग। When a charged particle moves at an angle to the magnetic field, then a charged particle is moved, okay, moved
एट एन एंगल अदर देन, बाकी तो पढ़ ही लिए हमने, अदर देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, इसके सिवाय यदि किसी एंगल पर मूव करता है तो देखिए जरा आपके पास सामने डायग्राम बना हुआ है, एनसीईआरटी ने बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम बनाए हैं। अब देखिए ये हो गया इसका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। तो सवाल कुछ इस तरीके का है कि आप इस तरीके से, आप पहले हम कैसे फेंक रहे थे, हमारे पास ऐसे था, तो हम इस केस में क्या करेंगे कि हमारा जो वेलोसिटी है, हम इलेक्ट्रॉन को कुछ या चार्ज पार्टिकल हम कुछ इस एंगल में फेंक देंगे। इस एंगल में फेंकने पर क्या होगा, अब वेलोसिटी का कोई एक एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और वो कैसा है, ना तो 0 डिग्री है, ना 90 डिग्री है, ना 180 डिग्री है। तो इसी का ही डायग्राम यहाँ बना हुआ है कि आपने चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से फेंका हुआ है, तो उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कौन सा हो जाएगा, एक बी कॉस थीटा होगा, ये होगा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं लिख दूंगा वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड। और जो दूसरा कंपोनेंट होगा, ये इसको मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये हो जाएगा इसका बी साइन थीटा कंपोनेंट बाई रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ा हुआ है कि कैसे आएगा। तो ऐसा करने के बाद क्या होगा, अब आपने बाकी कुछ नहीं देखना है, आपने ऑलरेडी जो पढ़ रखा हुआ है वो ये, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं कि ये देखो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और ये जब किसी एक एंगल के बीच में हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एक एंगल बनाते हुए एक चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं, जैसे ये वाला एंगल है, इस ऐसे आपने वेलोसिटी को फेंका है, और इसके दो कंपोनेंट हो गए बी पैरेलल। सो बी पैरेलल हमने यहाँ लिख दिया, इट इज़ वी कॉस थीटा रिजॉल्व करने के बाद, बी परपेंडिकुलर इट इज़ वी साइन थीटा रिजॉल्व करने के बाद, अब ये जो बी पैरेलल कंपोनेंट है इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जी पर बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इट इज़ इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देखिए ये ऐसा करने के बाद यदि हम ऐसे फेंकेंगे तो हमने कुछ पैरामीटर्स हमने सॉल्व किए थे, वो था रेडियस ऑफ एक हेलिकल पाथ बना देगा, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, रिंग जैसे बने हुए हैं, यही हेलिकल पाथ होता है। ये इस तरीके का जो रोटेशनल और आगे बढ़ता हुआ जो स्पिरियल टाइप फॉर्म है, ये हेलिकल पाथ है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, तो आपका जो एग्जिस्टिंग फार्मूला था, ये जो रेडियस है, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ क्या हो जाएगी, एम बी अपॉन बी क्यू। ये सर्कुलर पाथ की थी, पर अब आप यहाँ देखें जरा, इस जो चार्ज पार्टिकल को घुमा कौन सा कंपोनेंट रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट या पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर है, तो इसका घुमाने में कोई रोल नहीं है। ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये इसको ऐसे करके घुमा रहा है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये किस कंपोनेंट की वजह से घूम रहा पार्टिकल, जैसे आपने इसको किसी इस एंगल पर फेंका था, तो ये वाला कंपोनेंट इसको आगे की ओर धकेल रहा है। ओके, और जो ये वाला जो कंपोनेंट है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये इसको इसका सर्कुलर ट्रैक बनाने में रोल अदा कर रहा है। तो मेरा जो ये फार्मूला है ये थोड़ा सा शिफ्ट होके इस तरीके का हो जाना चाहिए। ओके, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब पेंसिल का कलर चेंज करते हैं और बी परपेंडिकुलर की हम वैल्यू पुट कर देते हैं। यह आ जाएगा एम परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, एम वी साइन थीटा अपॉन वी क्यू। सिर्फ इतनी जल्दी से आंसर आ जाएगा, बिकॉज दिस वी साइन थीटा कंपोनेंट इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियस ऑफ दिस हेलिकल पाथ। इसके लिए सिर्फ ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वही जिम्मेवार है, पैरेलल कंपोनेंट में इसका कोई रोल नहीं है। आगे आपने एक इक्वेशन और की थी, जरा आप यहाँ देखिए, उसमें आपने किया था टाइम पीरियड में, क्या किया था, टाइम पीरियड में था, टाइम पीरियड का फार्मूला था, टाइम पीरियड वाज 2πm अपॉन बी क्यू। अब आप क्या देख रहे हो, ये जो फार्मूला है वो इंडिपेंडेंट है, दिस फार्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, सो इट विल रिमेन द सेम, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन नंबर हम थोड़ा डाल देते हैं, हम है इक्वेशन नंबर 9 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 9, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 10। तो यदि टाइम पीरियड को कोई फर्क नहीं पड़ा तो जो फ्रीक्वेंसी है वो भी उतनी ही रहेगी, दिस इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन 2πm। सो ये इक्वेशन नंबर 11 हो गया।
उसके बाद क्या होगा, जो ओमेगा होगा वो 2 पाई टाइम न्यू, तो ये 2 पाई टाइम बी क्यू अपॉन 2 पाई एम, इट विल स्टिल रिमेन द सेम। इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देखते चले जाइए, ये बता रहा है कि इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि ये आप किसी एंगल के ऊपर चार्ज पार्टिकल को इसमें फेंकते हैं तो आपकी रेडियस को तो फर्क पड़ेगा, टाइम पीरियड भी वही रहेगा, मीन्स उतनी तेजी से वो अपना जो गोल चक्कर लगाएगा, और फ्रीक्वेंसी भी उतना ही रहेगा पर सेकंड में, उसके जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है वो भी सेम रहेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगा। अब देखिए आप, आपका ये वाला जो कंपोनेंट है, एक नई चीज में आएगी, पिच ऑफ हेलिकल पाथ। इसको समझना अपने बड़े ध्यान से, पिच ऑफ हेलिकल पाथ, ये बड़े सुंदर तरीके से आपको समझ भी आएगा और आप इसको, इसका न्यूमेरिकली बड़े आराम से निकालेंगे। पिच ऑफ हेलिकल पाथ, इसमें हेलिकल पाथ बनता कैसे, देखो ये पाथ हेलिकल है, ये देखो, इज द शेप ऑफ द हेलिकल पाथ। ओके, अब इसमें ये वाला पार्ट कौन रोल प्ले कर रहा था, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और जो इस साइड को क्या चीज धकेल रही थी, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में थी। ओके, अब बेटा जो ये बात है, आपको पिच का एक डेफिनेशन समझना है, तो सबसे पहले आपको पिच का डेफिनेशन समझना होगा कि बट डू यू मीन बाय पिच, तो पिच क्या होता है। पिच ऑफ द हेलिकल पाथ की जो डेफिनेशन मैं यहाँ लिखता हूँ आपके लिए, इट इज द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन, द डिस्टेंस moved by the charge, moved by the charge along the magnetic field, along the magnetic field in सिर्फ वन रोटेशन में। तो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो एक रोटेशन में वो जितने दूर चला जाता है, अब यहाँ देखिए आप, ये इसको हम लाल से मार्क करते हैं, ये देखो ये वाला और ये वाला डिस्टेंस, इस गोले में और इस गोले के बीच में ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये पिच है, ये वाला। ओके, तो ये जो डिस्टेंस मूव कराने के लिए वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जो रोल प्ले कर रहा था, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, इस पर फिर ध्यान दीजिए। ठीक है, सो पिच बेसिकली क्या है, वो डिस्टेंस है, ये देखिए। ओके, यदि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, पिच जो कि डिस्टेंस है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी गुणा टाइम ही होना चाहिए, यूनिट तो वही रहेंगे ना। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ये वाला जो वेलोसिटी का वेलोसिटी वेक्टर है, ये रिस्पॉन्सिबल है जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ से मैं ये चूज कर लूंगा। आगे डेफिनेशन में देखिए, उसमें कहा कि द डिस्टेंस मूव्ड बाय द चार्ज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन, तो टाइम पीरियड कितना आना चाहिए, सिर्फ एक रोटेशन का आना चाहिए, तो एक रोटेशन का टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। ओके, सो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी की, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ 2 पाई एम अपॉन वी क्यू, और पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज वी cos theta. So this is what we are end up with, the expression for pitch at the end, it is equal to 2 pi m b cos theta upon b k। ओके, सो ये सब इसके बारे में था। जब हम इसके आगे कुछ प्रॉब्लम करेंगे तो आपको और गहराई से समझ आ जाएगा। आप इन फार्मूलाज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करें तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी। ओके, सो नाउ वी विल गो फॉर द प्रॉब्लम। हम जितनी बार भी थ्योरेटिकल कोई कंसेप्ट करते हैं तो उसके बाद हम उसके ऊपर एक प्रॉब्लम ज़रूर करते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम एक प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करेंगे अभी। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस वेल। ओके, हमारे पास जो प्रॉब्लम है आपसे पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो जो आपसे पूछा हुआ उसको आप यहाँ लिख लीजिए सबसे पहले।
रेडियस आपको निकालना है। ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू इवेलुएट। जो गिवन पैरामीटर है मास, उसको चुपके से पहले लिखते चले जाइए, 9 क्रॉस 10⁻31 किलोग्राम। यदि ऐसा यूनिट में है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो चेंज कर लीजिए। जो चार्ज का वैल्यू है वो 1.6 क्रॉस 10⁻19 कूलम है ऑलरेडी। और जो स्पीड है वो भी जो गिवन पैरामीटर है वो दिया हुआ है 3 क्रॉस 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ये सब एसआई यूनिट्स में है। मैग्नेटिक फील्ड भी एसआई यूनिट में है, बी इज इक्वल टू 6 क्रॉस 10⁻⁻4 टेस्ला। एंड दूसरी चीज़ आपसे पूछी हुई है कि बट इज़ इट्स फ्रीक्वेंसी। आपसे ये पूछा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और आपसे पूछा हुआ है कि एनर्जी क्या होगी, ये भी पूछा हुआ है एनर्जी क्या होगी, और साथ में ये बताया है आपको इसका आंसर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। और साथ में गिवन एक और चीज़ है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जाउल के बराबर होता है। ओके, सो हम क्या करते हैं कि हम एक इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास नोन और अननोन पैरामीटर्स की एक लिस्ट हो गई जो हमें सबसे पहले बनानी होती है। जैसे जैसे पढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे हम नोन और अननोन पैरामीटर लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है उसके ऊपर ध्यान देंगे। हम जानते हैं, वी नो दैट। अब हम ड्राइव नहीं करेंगे, हम सीधा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि जो हमारा रेडियस का जो एक्सप्रेशन है वो होता है एम बी अपॉन वी क्यू। ओके, अब इसमें देखिए मास आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और जो चार्ज, बिकॉज इट्स ए सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो उसका चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। सो इट इज नाउ योर personal ways to find it out the answer of this question. Mass of an electron is 9 cross 10⁻⁻31 किलोग्राम लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सारे यूनिट्स जो है वो एसआई में है। तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 3 क्रॉस 10⁻7, और उसके बाद है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 6 क्रॉस 10⁻⁻4 टेस्ला एसआई यूनिट्स में है, और चार्ज जो है वो 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम है। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं, इस एक्सप्रेशन को मैं वैसे थोड़ा लिख देता हूँ कि आपको करने में आसानी होगी। 9 क्रॉस 3 पहले ऐसे लिख लीजिए, और 6 क्रॉस 1.6 ऐसे लिख लीजिए, और ऐसे सॉल्व करिए। -31 +7 +4 and +19. So you can solve the rest of the part because of as you are 10+2 students. So ये आंसर आ जाएगा आपके पास 26 क्रॉस 10⁻⁻2 मीटर। ओके, सो जो 10⁻2 का जो नेम होता है, सिंबॉलिक नेम जो सी होता है, सेंटी, सो इट इज 26 सेंटीमीटर। द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ये पूछा हुआ था आपसे कि रेडियस कितना होना चाहिए, तो हमने निकाल लिया। उसके बाद आपसे सेकेंड पार्ट पूछा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा। अब हम इसकी ओर ध्यान देते हैं, तो इसके लिए भी हम एक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है वो होता है न्यू इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी। यस, इट इज वेलोसिटी अपॉन 2 पाई। इट इज इक्वल टू v अपॉन 2 pi r. So the velocity of an electron is given to you. This is equal to 3 cross 10⁻⁷. 3 cross 10⁻⁷ SI यूनिट्स में है। 2 क्रॉस 3.14 जो रेडियस है वो 26 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं 3 अपॉन, रफ यदि आपको आइडिया लेना हो तो आप इसको ऐसे लिखते हैं 2 क्रॉस 3
और आप 26 को नियरली 25 लिख सकते हैं, आपने करना नहीं है, मैं आपको इसको एक रफ आइडिया बता रहा हूँ जल्दी से करने का। और क्रॉस 10⁻7 यहाँ है, 2 यहाँ से जाएंगे +2 हो जाएगा, तो 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास रह जाएगा यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 1/50 क्रॉस 10⁻9, राइट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आगे 100/50 क्रॉस 10⁻7, तो आपके पास आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 20 मेगा हर्ट्स। मेगा मीन्स 10⁻6 हो जाएगा। ओके, दिस इज 20 मेगा हर्ट्स विल बी द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। एंड द लास्ट थिंग दैट इज आस्क्ड फ्रॉम यू इज एनर्जी क्या होगा। तो एनर्जी के लिए हम पहले तो आपके लिए पेन चेंज करते हैं। एनर्जी जो होगा वो होगा 1/2 mv²। ओके, so this is 1/2 mass of an electron is 9 cross 9 क्रॉस 10⁻31 किलोग्राम, लिखने का ज़रूरत नहीं। और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 3 क्रॉस 10⁻7, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 क्रॉस 9 क्रॉस 10⁻31 क्रॉस 9 क्रॉस 10⁻14. Okay, so it will be 81/2 cross 10⁻, it is nearly -17. ओके, जाउल में आएगा, तो ये आ जाएगा 40.5 क्रॉस 10⁻⁻17 जाउल। बट व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम दिस क्वेश्चन, आपसे पूछा है, आपने अपना जो सवाल का उत्तर है वो जाउल में नहीं देना है, आपने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना है। तो हम इसको देखो जरा ऐसे करते हैं फटाफट से, जब आपको करना तो कितना आसान होता है। 40.5 क्रॉस 10⁻⁻17 क्रॉस 1 जाउल, ऐसे लिख देता हूँ इसको। ओके, और यहाँ से देखो जरा 1 जाउल की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो 1 जाउल कितना आ जाएगा, 1 जाउल इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 1 जाउल आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19। ओके, तो यहाँ पुट कर दीजिए आप, आपका जो एनर्जी का जो आंसर है वो आ जाएगा 40.5 क्रॉस 10⁻⁻17 क्रॉस 1 जाउल की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19. So this will come out to be, after solving following few steps of calculation, we'll find that this is 2.5 kilo electron volt. So this is what we have learned through the numerical problem. There are 3 unknown parameters, वो हमने अब निकाल दिए हैं, और जो हमने concept physics का पढ़ा था उसको हमने apply कर लिया है। Now you can practice different form of problems on the basis of this physics, and you can be the master of this concept. Okay, thank you very much.